students, as I was mentioned that there will be more students from PhD, but in any case. So thank you, research. लेकिन it should be very clear कि I'm also a similar student like you. I just finished my PhD last year in November 2021. I just defended it last year. I joined it in 2015 from Kumaon University. So I will feel more connected to you because I also did my BSc, MSc and PhD from the same institute, same university, Kumaon University. And I would really appreciate if this conversation will go to both ways. कि मतलब मैं ना बोलती रहूं और जिसे कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आई वुड बी सो हैप्पी इफ समवन विल इंटरप्ट मी इन बिटवीन और वो ऐसे ही पूछ ले क्योंकि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है एक ही ओर से बस बोलते रहने से और इट सीम्स लाइक कोई सुन भी रहा है कि नहीं पता नहीं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसे तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरा Hi, can you see my screen as a full screen in presentation mode? Yes, ma'am. Okay. So please interrupt me in between if you would like to have any question or anything in between. So again, thank you so much for inviting me to give a lecture on scientific research approach and opportunities. Though sometimes I feel that I'm not doing much justification because I'm also a researcher. I just finished my PhD. So, but I will in any way, I would like to give my views like. How did I feel or how do I think how this research methodology should be. So I'm Ritika Joshi and I did my PhD from Kumaon University in Nainital with Professor Ramesh Chandra. And now I'm a postdoctoral researcher at Rosslyn Center for Solar Physics in University of Oslo. And okay, so for the introduction of my talk, so first I would like to go in a way to give a brief introduction of about this topic or this research methodology. और उसके बाद मैं एक पार्ट अपना थीसिस का या मैंने जो काम किया है उसके बारे में भी बोलूंगी जैसा कि मेरी कमल द्विवेदी सर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि इट वुड बी नाइस इफ आई कैन स्पीक आल्सो अबाउट व्हाट आई हैव डन इन माय पीएचडी सो आई विल ट्राई टू डू दैट सो इफ I start from what does it mean, the research, when we do research. So as it says the word, it is the common language when we go for searching the knowledge. यानी कि जब हम कहते हैं कि हम जब किसी ज्ञान के लिए रिसर्च मतलब जो पहले से ही है और उसको हम दोबारा से खोज रहे हैं या हम कहें कि इन डेप्थ में उसको गहराई से जानने के लिए देख रहे हैं तो वो रिसर्च है और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि आपको भी सभी को पता है कि रिसर्च में देन वी डिसाइड अ स्पेसिफिक टॉपिक जैसे मेरा बीएससी मैंने मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री से किया देन जब हम मास्टर्स करते हैं तो वी गो फॉर अ रादर स्पेसिफिक टॉपिक तो फिर वो फिजिक्स में किया जब फिर पीएचडी के लिए जाते हैं देन यू गो ओनली फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक तो किसी एक विषय विशेष के अंदर एक छोटा टॉपिक लेके उसका जो गहन अध्ययन है वो सही मायनों में रिसर्च है or as it says it's an art of scientific investigation. So if I go with the definition from Clifford Woody, this research comprises defining and redefining the problems, formulating the hypothesis and suggesting solutions, with collecting, organizing and evaluating the data and making deductions from them and then reaching to the conclusions and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis or not. तो इस परिभाषा के अनुसार रिसर्च मतलब जब हम शुरू करते हैं जैसा कि हमारे यूनिवर्सिटीज में भी होता है कि जब हम रिसर्च के पहले साल में होते हैं कोर्स वर्क के दौरान तो हम अपना एक सिनॉप्सिस लिखते हैं तो इट सेज व्हेन वी डिफाइन एंड कंप्राइज दिस थिंग देन इट कम्स विद द कोई हाइपोथेसिस हम
बनाते हैं कि ठीक है हम इसके हिसाब से अपना रिसर्च करेंगे, देन वी सजेस्ट सॉल्यूशन एंड वी स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा एंड ऑर्गेनाइज एंड इवेल्युएट द डेटा। और ये हर एक फील्ड के लिए अलग अलग होता है, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बायस्ड हो जाऊंगी साइंस के लिए बात करने के लिए, दो आई ट्राई टू स्पीक इन जनरल विद द ह्यूमैनिटीज और सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, बट बिकॉज आई नो a bit well how to go with the collect and organize the data in the science field. तो जैसे साइंस में होता है कि you go for अगर आप ऑब्जर्वेशनल फील्ड में हो तो यू गो फॉर ऑब्जर्वेशंस, आप ऑब्जर्वेशन बनाते हो और उसके ऑब्जर्वेशन करते हो, उसके बाद उसको रिडिफाइन करते हो और एनालाइज करते हो, इट गोज दैट वे. If we are in social science, then we go for sometimes we go into among the people, लोगों के बीच में जाके उनसे बातचीत करके और उनसे हाँ तो सही क्वेश्चन आयर जब हम करते सवाल जवाब करके जब हम करते तो दैट्स द वे. और उसके बाद हम एक कुछ स्टैटिस्टिकल या कुछ सांख्यिकीय तौर पे एक डिफाइन करते हैं कि ये हमें इट इज द वे, तो फिर उससे हम कुछ निर्णय लेते हैं. हाँ तो that is the according to this definition. Then if I come to this objective of research, then इसके ऑब्जेक्टिव यह है कि क्यों हम रिसर्च करते हैं कि टू गेट फेमिलियरिटी विद द फिनोमेना और टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट, कि हम उस टॉपिक में सच में कुछ नई खोज करना चाहते हैं और ज्यादा अच्छे से उसको और गहन तरीके से जानना चाहते हैं. टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स. और हम ये देखना चाहते हैं कि किस गति से वो चीजें हो रही हैं. जैसे अगर मैं अपने फील्ड में कहूं तो जैसे मेरा जो पीएचडी था, जैसे सर ने बताया कि इट वाज ऑन दी सन, इट वाज विद दिस सोलर जेट्स. तो जब हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, डेटा सेट कलेक्ट करते हैं, तो वी आल्सो लुक फॉर दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग अ जेट ऑन अ सोलर सरफेस, this kind of thing. Then the other objective is to test a hypothesis of a causal relationship between variables, जिसको फिर हम hypothesis testing ये सब कहते हैं. तो there are different kind of researches, different types of I should say. तो एक applied research और fundamental research. तो जैसे इनके नाम से भी है, तो applied research जिसका immediate कोई इफेक्ट दिखता है सोसाइटी में, इंडस्ट्री में या बिजनेस में. दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च, जो बेसिक साइंस भी जिसमें फंडामेंटल के अंदर आता है. तो इट इज मेनली कंसर्न विद द जनरलाइजेशन एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ सम थ्योरी और सम. सो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा सोसाइटी पे, दिखता है, बट इट टेक्स सम टाइम. जैसे हम फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, हम सब लोग या जो लोग फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, तो समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू उसका कोई इफेक्ट दिखने में सोसाइटी में. I'm sorry. तो दूसरा है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च. तो इट्स आल्सो एन am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. तो किसी को कुछ सवाल पूछना होगा तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ दे कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि मैं बस एक ही ओर से बोलते चली जा रही हूँ. रादर टू सो आई ऑलवेज प्रेफर दिस वे ऑफ लर्निंग. मैं हमेशा सीखने की इस तरीके को ही अच्छा समझती हूँ जिसमें दोनों ओर से कन्वर्सेशन होता रहे. जैसे ऐसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ और कोई किसी का कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन, वो कुछ भी हो सकता है. And it should be in that way that you should not feel hesitate or anything, because I'm exactly just like you, like I am from the same place and from the same university, so I will really appreciate it. Yeah. So for the quantitative versus qualitative research, तो quantitative research होती है जब हम उसकी क्वांटिटी या उसके अमाउंट के बारे में बात करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च दूसरी ओर वो होती है जब हम किसी की क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता के बारे में हम बात करते हैं. अगला रिसर्च का टाइप है जब कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल. तो कॉन्सेप्चुअल जो कुछ तथ्यों पे या किसी आइडिया पे आधारित होता है, और एम्पिरिकल जो डेटा बेस्ड होता है,
जिसमें विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन या किसी एक्सपेरिमेंट से, जिसे यूजुअली कह सकते हैं कि फिजिक्स वाले लोग या केमिस्ट्री वाले लोग या इस तरीके से वो करते हैं, जिसका जो रिजल्ट है it should be based on the observations or experiments. बाकी रिसर्च अप्रोच के लिए है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च अप्रोचेस, जैसे क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, उसके बाद उनका अपना सब क्लासिफिकेशन है. तो आई विल नॉट गो मच इनटू दिस डिटेल, क्योंकि ये इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट्स in which subject you are, and I know that there are people from various branches, so I will not go much into this detail. Then we have the different type of research methods. When we talk about the research methods or techniques, तो वो methods जिन्हें researcher use करता है अपना research operation को पूरा करने के लिए, या in more general कहें अपना PhD thesis का जो काम है उसको पूरा करने के लिए. तो जब हम research methodology की बात करते हैं, तो we not only talk about the research methods, but also consider the logic behind the methods we use. तो हम जिस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं माना किसी मेथड को अप्लाई करती हूँ अपना डेटा रिडक्शन के लिए, तो ये केवल वो मेथड ही नहीं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब है कि मुझे तार्किक होना पड़ेगा कि क्यों मैं इसी मेथड को अपने डेटा के लिए यूज करूं. वो किसी भी वे में हो सकता है, जैसे सोशल साइंस में भी होता है. देयर आर वेज कि जब आप किस तरीके से आप डेटा को एनालाइज करते हैं, ये उत्तर प्रत्युत्तर वाला मेथड है, या आप किसी से ये क्वेश्चनायर भरवाते हैं, या आप फील्ड में जाके काम करते हैं. तो केवल काम करना ही नहीं, बल्कि उसके पीछे क्या तर्क है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और ये एक्सप्लेन करना कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड एंड नॉट द अदर वन, कि मैं यही मेथड क्यों यूज कर रही हूँ या क्यों यूज कर रहा हूँ और दूसरा कोई और मेथड नहीं. तो जैसे नाम से लगता है रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब जस्ट द मेथड वी आर यूजिंग, बट इट्स नॉट दैट वन. इट डिपेंड्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, और शुरू करने से पहले व्हाट इज द रीजन आई एम यूजिंग इट, हाउ वी आर यूजिंग इट, एंड व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर द अदर सॉल्यूशंस. कि मैं इसे ही केवल मैं क्यों यूज करूं, या कोई और मेथड में क्यों नहीं यूज करूं, या ऐसा क्या है इस मेथड में कि इसी से मुझे रिजल्ट आएगा. तो कई बार हमें जो हमारा खुद का मेथड्स होता है उसको भी हमें जज करना चाहिए और तार्किक रूप से सोचना चाहिए. दैट्स द रिसर्च मेथोडोलॉजी. So there are different process of research processes. तो अगर मैं हमारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलूं, जैसे हमारे में है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, कि at first we formulate the research problem when we are writing the synopsis. तो रिसर्च के पहले साल में ही हमें ये होता है कि you have to write a synopsis where you define a research problem. तो हम क्या करते हैं कि हम पहले थोड़ा पढ़ते हैं या देखते हैं, देन वी डिसाइड अ रिसर्च प्रॉब्लम, देन वी डू एन एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे. फिर हम काफी उसमें उस फील्ड में या उस विशेष टॉपिक में जितने भी एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे हुआ है या जितना काम हुआ है पिछला वो सब पढ़ते हैं, या उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं. जैसे अगर कोई सूरज पे रिसर्च कर रहा है तो वो माना किसी टॉपिक को ले लेता है कि माना सूर्य से आने वाली हवाओं पे वो रिसर्च करना चाहता है. तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा जाके सूरज से आने वाली सौर हवाओं पे रिसर्च करेगा. पहले हमें शुरू करना होता है कि हम पढ़ते हैं कि कैसे प्लाज्मा काम करता है, कैसे प्लाज्मा की जो ये अभिक्रियाएं होती है ये होती हैं. फिर आप देखते हो कि और क्या क्या अभिक्रियाएं और क्या क्या एक्टिविटी सन में हो रही है. फिर हम देखते हैं कि हाँ मुझे सोलर विंड पे या सूर्य से आने वाली हवाओं पे अगर रिसर्च करना है तो पिछला क्या रिसर्च वहां हो गया है, बिकॉज वी कैन नॉट गो ब्लाइंडली फॉर दैट. अगर हमें हमारा रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना है तो इट शुड स्टार्ट विद एन एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू. देन वी गो विद डेवलपिंग द हाइपोथेसिस. तब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अच्छा हम इस तरीके से अपना रिसर्च जो है इसको कैरी ऑन करेंगे. देन वी प्रिपेयर द रिसर्च डिजाइन, जिसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस के बाद जब हमारा होता है कि हम डिफाइन करते हैं कि कैसे हमें अपना जो ये रिसर्च है उसको डिजाइन करना है. देन वी स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा, क्योंकि व्हेन वी डू दिस रिसर्च सैंपल डिजाइन हम ये सोचते हैं कि अच्छा 2 महीना मुझे फील्ड पे जाना है, अगर सोशल साइंसेस की बात करें या किसी और फील्ड की बात करें कि अच्छा मुझे फील्ड पे जाना है, देन आई हैव टू कलेक्ट सम डेटा, बट इट्स ऑन पेपर
जब हम अपना रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं कि अच्छा मुझे इस तरीके से काम करना है कि मुझे इतना टाइम यहाँ जाना है, फिर आई विल कलेक्ट सम डेटा, उसके बाद उस डेटा को लेके अगर मैं आऊं तो देन आई विल डू विथ माय हाइपोथेसिस और ये सब। तो जब एक उसका खाका, एक खाली खाका हम बना लेते हैं दिमाग में या कॉपी में या पेज में, देन वी गो फॉर कलेक्टिंग द डेटा, and that's the really important part and where you feel like you are going really to do some research. Then we do the execution of the project और उसकी शाखाएं खोल के then we go to analyze the data जो हमने लिया है, क्योंकि जब हमने अपना प्लान बनाया था तो उसके बाद जो हम कैसे उस डेटा को एनालाइज करते हैं, इट गोज दिस वे। देन वी डू द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कुछ हमने जो अपनी हाइपोथेसिस पहले से डिफाइन की थी कि इन इन तरीकों से या इन चीजों की मदद से मैं अपना डेटा एनालाइज करूं, तो उनको फिर आप टेस्ट करते हो कि जो आपने पेपर में बनाया है इज इट रियली वर्थ वर्किंग और नॉट। ऐसे फिर जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाता है, देन यू जनरलाइज एंड इंटरप्रेट योर थिंग्स कि अच्छा मैंने ये डेटा को मैंने ये सोचा था ऐसा आया, या मैंने ये सोचा था और ऐसा नहीं आया। इट गोज बोथ वे, it can go both way, and then you prepare for the report or presentation of the result and to write the conclusion result. But I will mention that it also happens to me, it also happens to everyone, that it really difficult task at the very first to define your research problem. So I would really insist, or I would really recommend the people who are just starting their PhD that to spend more time to formulate the research problem, because it is the first step. When you formulate the research problem, then you go to the next step. तो जो पहला कदम है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने का, तो मेरे व्यू पॉइंट से या मेरे अनुसार ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो कई बार हमें ये होता है कि वी डू जस्ट लाइक ये रिसर्च प्रॉब्लम ले लिया। इट शुड नॉट गो दैट वे, क्योंकि जब आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट you are coming into a research field. So it should be a justified one. तो यहाँ पे होता है कि जब आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर से या अपने सीनियर्स से या कुछ यूनिवर्सिटीज के बाहर के लोगों से भी आप डिस्कस करते हैं कि सच में क्यों आप इस रिसर्च प्रॉब्लम को लेना चाह रहे हैं। एंड टू बी मोर ऑनेस्ट, रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए which opens the doors for you in future, कि जो आपके भविष्य के लिए भी आपके लिए दरवाजे खोले। ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम, क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम इज टोटली ऑन यू। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब का थीसिस का टाइटल या थीसिस जिसमें आप थीसिस करना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि सच में अभी भविष्य में काफी काम बचा है करने को और मैं इसे सच में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि इफ यू विल टेक ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम फॉर विच देयर इज नो स्कोप, then there is no point to make excuses ki there is no scope, because it was you who choose the problem. क्योंकि जब पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम चूज किया था तो इट वाज मी जिसने ये रिसर्च प्रॉब्लम चूज किया है, एंड देन माना गलत हो गया रिसर्च प्रॉब्लम चूज, जल्दीबाजी में चूज कर दिया, देन इट्स डिफिकल्ट टू कम बैक एंड टू चेंज इट। तो आई वुड रियली रिकमेंड टू स्पेंड मोर टाइम टू फॉर्मुलेट एंड टू चूज योर रिसर्च टॉपिक्स। Am I audible to everyone? Yes, ma'am. सुन पा रहे? Yes, ma'am. Yes, You're yes. audible. Thank you. Yeah. So it was about the research process. I was just forcing on it because, as I oftenly mention, I'm also from the same university, same departments as you all are. So I have seen this problem that to formulate a research problem is a problem for us, is a really a problem for us, क्योंकि मैं भी सेम उसी प्रोसेस से होके आई हूँ जिससे जो नए पीएचडी के बच्चे हैं अगर वो मुझे सुन रहे हैं वो होके जाएंगे। तो देयर इज नो शेम और नो प्रॉब्लम टू टेक टाइम टू सेट योर रिसर्च प्रॉब्लम। इसीलिए वो जो पहला साल होता है कोर्स वर्क का, वो इसीलिए दिया जाता है कि योर सुपरवाइजर इज नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू कि तुम पहले साल से ही काम कर लो। तो यू शुड कम विद अ काम माइंड, एक शांत दिमाग से सबसे ज्यादा अपना रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में हमें काम करना चाहिए। एंड यू हैव टू डिसाइड इट
कई बार तो मतलब मेरे हिसाब से कई बार एकदम जब आप रिसर्च में आ रहे होते हैं थोड़ा आइडिया आपके दिमाग में पहले से भी होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो उसके बाद यू कैन टेक टाइम, और उसके बाद यू हैव टाइम टू मेक दिस एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू कि रिसर्च में तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा, नॉट पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ोगे, इट्स अ चॉइस, नॉट फोर्सफुली, नॉट समवन इज इम्प्लीमेंटिंग यू। तो उसके बाद जब आप एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो भी आपको डिसाइड हो जाता है कि अच्छा मैंने ये रिसर्च प्रॉब्लम तो चूज कर लिया है बट इट सीम्स लाइक इसमें बहुत काम हो गया है, या इट सीम्स लाइक इसमें काम ही नहीं हो रहा है। तो if I have to choose a research problem, I will never choose a research problem which is not up to date. Like if people are not working on that since so long, I will not go to pick it up, or I will say that it's not a smart choice. So when you have to pick the research problem, so what I did, like with my supervisor, we always looked for like the recent papers और recent things किस चीजों में आ रही हैं, तो तब तुम उसके लिए जाते हो जिसमें हमें लगता है कि हाँ इसमें हम काम कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, you must like the topic as well. It should be of your great interest. If anyone has any question about that, किसी को कुछ पूछना हो या कुछ भी सुझाव लेना हो या सुझाव देना हो, otherwise then I'll go to the next slide. Someone can say just yes or no because I cannot see the chat. Should I go to the next slide? Yeah, ma'am, you can continue. If we have to ask something, we'll ask in between. Okay, because sometimes I feel like if I lost or in between. Okay. Yeah, you can Okay. continue. मैम एक बार, मैम नमस्कार, मेरा नाम मनीष जोशी है मैम, हिंदी बैकग्राउंड से हूँ मैं। हाँ जी, बताइए। हाँ मैम, रिसर्च डिजाइन को थोड़ा एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए मैम प्लीज। ओके, उप्स, हाँ, तो रिसर्च डिजाइन, क्या मलिन नाम बताया है ना? ओके, एनीवे, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन। रिसर्च डिजाइन ये होता है कि जब हम डिजाइन करते हैं अपना रिसर्च को कि कैसे मुझे क्या हमें काम करना है, तो जैसे इन जनरल मैं बताती हूँ कि हिंदी के लिए आई थिंक आई कैन नॉट जस्टिफाई केवल हिंदी विषय के लिए, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जब हमारा रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन हो गया और जब हमने इतना स्टडी कर लिया और इतना पढ़ लिया कि हमने खुद को जस्टिफाई कर लिया कि हाँ ये रिसर्च टॉपिक है जिसके लिए मुझे आगे जाना है और इन मेथड से मुझे जाना है। कुछ मेथड्स आप सोच लेते हो या कुछ तरीके आप सोच लेते हो कि इस तरीके से आपको जाना है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास चॉइस होनी चाहिए। एक ही चॉइस से मैं नहीं जा सकती क्योंकि देयर आर चांसेस टू गेट फेल देन, सो वी हैव डिफरेंट हाइपोथेसिस। देन व्हेन वी प्लान द रिसर्च, तो इसका मतलब है कि कि हम डिफाइन करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि कैसे मुझे डेटा कलेक्ट करना है और किस समय मुझे डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद कैसे मुझे उस डेटा को एनालाइज करना है या कैसे मुझे उसको इंटरप्रेट करना है या कैसे मुझे उससे कुछ निष्कर्ष निकालने हैं। और जैसे साइंस के फील्ड में ये होता है, रिसर्च डिजाइन में इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू डिसाइड वेयर यू कैन गो, कि आप कहाँ जा सकते हो। कोई ऐसी लैब है जो आपको सपोर्ट कर सकती है या कोई ऐसी लैब है जहां आप जाना चाहते हो, तो इट गोज दैट वे। थैंक यू मैम। ओके, तो फिर जब हम रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद व्हेन वी गो टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, these all methods are based on the subjects from where you are coming, कि जो हम अपना पहले प्राथमिक डेटा लेते हैं, जो रॉ डेटा लेते हैं, उसके कई तरीके हैं जो अलग अलग विषयों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, या अलग अलग हम कहें अलग अलग फैकल्टी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें साइंस फैकल्टी का है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप देखोगे कि फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो ही और शी विल गो फॉर ऑब्जर्वेशन या फॉर एक्सपेरिमेंट ऐसे। अगर वो केमिस्ट्री का होगा तो वो टेस्टिंग के लिए या एक्सपेरिमेंटल लैब्स के लिए ऐसे जाएगा। अगर वो जियोलॉजी का भूगर्भ विज्ञान वाला होगा तो वो अपना रॉक्स में या माइंस में या जहां से उन्हें वो डेटा लेना है वो वहां जाएगा। और अगर मैथमेटिक्स वाला है तो दे विल डिसाइड कि क्या उन्हें किस तरीके से करना है।
और वैसे ही अगर सोशल साइंस में कोई है, जैसे राजनीतिक विज्ञान के अगर कोई है, तो आई थिंक द बेस्ट वे इज टू गो फॉर इंटरव्यू, या ये जो हम क्वेश्चन आयर्स के लिए जाते हैं, जब क्योंकि मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में थी मेरे मास्टर्स के दौरान, तो तब हमारे पास सोशियोलॉजी से काफी लोग आते थे क्वेश्चन आयर के लिए, और हम उसको काफी भरा करते थे, और देन वी रियलाइज कि अच्छा ये उनके पीएचडी में हेल्पफुल होता है। तो इट्स ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट बिटवीन पीपल, क्योंकि जब आप सामाजिक विज्ञान में काम कर रहे हैं तो it's a good thing to communicate like that. So this collection of primary data, it depends like from person to person, not person to person but from faculty to faculty. और जब आप साइकोलॉजी से हैं, इस तरीके से मनोविज्ञान से हैं, तो यू गो फॉर डेप्थ इंटरव्यूज, किसी जो आप ऑब्जेक्ट रखने की सोच रहे हैं, या जो आप स्टडी करने का सोच रहे हैं, उससे आप डिटेल में बात करने का, ये सब होता है। तो these methods, the collection of primary data, it really depends on which branch you are doing. Okay, so if we talk about the observational method, या observation जिसे हम कहते हैं कि हम अन्वेषण करते हैं, तो it can go anyway. तो the observation method is the most commonly used method, especially in studies relating to behavioral साइंसेस। तो जो व्यवहारिक साइंस होती है उसमें भी ये काफी यूज में आ जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का कई अलग अलग मतलब हो सकता है। जैसे फिजिक्स के लिए ऑब्जर्वेशन का मतलब होगा कि अगर कोई तारों का अध्ययन कर रहा है तो वो टेलीस्कोप में जाके रात में ऑब्जर्वेशन ले और वो उस ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा करे। जैसे मैं जब सोलर फिजिक्स में स्टडी कर रही थी, तो फॉर मी द टास्क वाज टू ऑब्जर्व द सन, टू कलेक्ट द डेटा, जस्ट टू कलेक्ट द डेटा, क्योंकि जितना डेटा हम कलेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है उसको एनालाइज करने की। और कोई और साइंस में है या सोशल साइंसेज में है, तो उनके लिए ऑब्जर्वेशनल डेटा मतलब टू गो विद द पीपल टू ऑब्जर्व एंड टू मेक सम स्टैटिस्टिक्स, या कुछ अपना जो भी वो पेपर में बना सकते हैं, या उसका कुछ टेबल बनाने का। तो ऑब्जर्वेशन बिकम्स अ साइंटिफिक टूल एंड द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर रिसर्चर when it serves a formulated research purpose, systematically planned and recorded and is subjected to checks and controls on validity and reliability. तो जो ऑब्जर्वेशन आपने खुद से बनाया होता है अपने रिसर्च पर्पस के लिए, तो आप उसकी वैलिडिटी और ये सब देख के उसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। And the main advantage of this method is that subjective bias is eliminated if observation is done accurately. तो this is the thing, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जैसे हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन मतलब जो मैंने देखा वो मैं लिखूंगी, इट विल नॉट बी बायस्ड। क्योंकि कोई और मेथड ऐसी हो सकती है, कई बार हमारे दिमाग में होता है कि हम ये देखना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा ही हो, बट इट डजंट गो विद द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन यू जस्ट ऑब्जर्व समथिंग एंड यू नोट इट डाउन एज यू सी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, कि इसमें आप बायस नहीं हो सकते, मतलब आपका किसी और झुकाव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्वेशन सच में सही ढंग से कर रहे हैं तो आप वो ही लिखेंगे जो आप देख रहे हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, स्ट्रक्चर्ड, वो ढांचागत हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। दूसरा, इंटरव्यू मेथड। It's a really important thing for the people who are working in social sciences, in sociology or in political science, or in like that. Like people, I think people are working on this master in social work. We also have in Kumaon University the new department, master in social work. So I remember the people used to come from those department to ask for us for so many things. तो ये जो नया department खुला है MSW ऐसे करके, मास्टर इन सोशल वर्क, तो वो लोग भी इंटरव्यू के लिए ऐसे आते हैं। तो इट्स, आई पर्सनली फील इट्स अ गुड मेथड। तो द इंटरव्यू मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ ओरल, वर्बल, और उसका इन बोथ वेज, लाइक वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप उन्हें जवाब दोगे, it goes that way. This method can be used through personal interview and if possible through telephonic interviews. So I think the social, as far as I from my experience, I think they prefer the personal interviews, कि 1-to-1 मिलके वो उनसे कुछ सवाल करते हैं और उस हिसाब से अपना डेटा वो लोग कलेक्ट करते हैं। तब डेटा कलेक्ट करने के बाद, अपना हाइपोथेसिस रन करने के बाद, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स। So the one is technical report.
so when you write something as a report, so in the technical report the main emphasis is on the methods employed, assumptions made by you, and the detailed presentation of finding the structure. तो जैसा हम शुरू से जब हम निबंध लिखते थे, जब हम छोटी क्लासेस में होते थे, छठी में, सातवीं में, तो मुझे याद है हम निबंध जब रूपरेखा उसकी देते थे तो वी स्टार्टेड फ्रॉम, पहले हम लिखते थे प्रस्तावना, फिर हम कुछ तो बीच का मेन, और लास्ट में होता था उपसंहार, तो जहां हम सारा जो उसका समरी है वो रखते थे. तो वैसा ही है टेक्निकल रिपोर्ट. फर्स्ट यू राइट द इंट्रोडक्शन, देन यू राइट समथिंग अबाउट योर मेथड्स, which methods did you apply in detail, then you write what you have found, then you write how it is compatible or incompatible. तो जैसे अभी हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो वो भी बिल्कुल उस निबंध की तरह है. पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो जिसमें आप डिफाइन करते हो कि अच्छा अगर आपने किसी, माना अगर आप इतिहास से हैं या किसी और सामाजिक ये किसी और आर्ट स्ट्रीम से हैं, तो आप लिखते हैं कि जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में अभी तक क्या क्या पता था और ये क्या है. जैसे मैं अगर लिखूंगी, अगर मेरा स्टडी है सोलर जेट पे, तो मैं पहले लिखूंगी कि शुरू कहाँ से हुआ, ये है क्या, ताकि कोई जनरल आदमी भी अगर उसे पढ़े वो भी उसको समझ पाए. द मेन थिंग इज देन यू राइट द मेथड्स एम्प्लॉयड, क्या मेथड आपने यूज किए, क्योंकि इट्स नॉट अ जनरल आर्टिकल, यू आर गोइंग टू राइट इट as a social scientist or as a scientist, so you will write about your methods कि क्या methods आपने यूज किए हैं, क्या assumption आपने लिए. जैसे इंटरव्यू के टाइम भी होता है कि आप ग्रुप्स बनाते हो कि अच्छा आप इस ग्रुप का इंटरव्यू लोगे, तो उसके लिए आपने कुछ assumption पहले दिमाग में बनाए होते हैं, कुछ आपने कुछ डिसाइड किया होता है कि हाँ मुझे ये मेरा क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से मुझे अपना ग्रुप लेना है, तो वो सब भी आप उसमें ऑनेस्टली बिना बायस्ड हुए लिखते हैं रिपोर्ट में. और फिर आप बताते हैं कि ये मेरी मेथड्स थे और ये मेरे रिजल्ट्स हैं. सो द रिजल्ट्स कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी, इट इज पॉसिबल कि वो ऐसे रिजल्ट्स हो जैसा यूजुअली अभी तक हो रहा था उसके उलट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी का जैसा हो. तो so my point is you must have been so honest about your results. That's what I will really recommend you कि जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं आपको उन पे बने रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जैसे रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहे थे, तो हमें लगता है वो सब गलत हो गया, इसका मतलब मेरा रिसर्च फॉर्मुलेशन ही गलत था, फिर मैंने गलत हाइपोथेसिस कर दिया. बट इट डजंट गोज लाइक दैट. तो जो रिजल्ट आपको पॉजिटिव या निगेटिव बने हैं उसके सपोर्ट में आप क्या मटेरियल देते हैं, कि क्या आपने अगर आपको ऐसा मिल रहा है, माना ऐसा है कि मैं ये कहूं कि माना मैंने कोई रिसर्च किया जिसमें मैं किसी का वेग को नापी या उसकी स्पीड को नापी, मतलब उसका जो चाल है उसको नापी, और आज तक कोई कह रहा था कि वो तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, और मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ किया और मुझे आ गया कि नहीं वो तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है. तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दूंगी तो वो रिसर्च रिपोर्ट सही है या गलत है. मुझे उसके सपोर्ट में कोई मटेरियल देना होगा कि मेरा 1000 आया है तो क्यों आया है. लेकिन द फर्स्ट थिंग इज मुझे अपने रिजल्ट पे बने रहना होगा कि ऐसा नहीं कि नहीं 100 ही आना चाहिए था, आई शुड गो बैक. ऑफ कोर्स इट्स गुड टू चेक योर डेटा इनटू एवरीथिंग, बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस दैट यू आर रॉन्ग. So you should of course check your research process, but you should also believe on yourself कि नहीं मैंने किया है, तो you should, I will ask you rather to go for the supporting material कि क्यों ऐसा हुआ. हो सकता है कि you did it so well, तो it goes both ways. तो उस रिसर्च रिपोर्ट का उसके बाद आप समरी लिखते हैं रिजल्ट्स की. तो समरी मीन्स इट्स जस्ट व्हाट यू हैव फाउंड, जस्ट समरी. उसके बाद नेचर ऑफ द स्टडी लिखते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि क्या आप करना चाह रहे थे, कैसे आपने किया और क्या आपकी हाइपोथेसिस थी, ये सब. और तीसरा ये मेथड, और दूसरा अगला उसका डेटा. ओके. और उसके बाद आप लिमिटेशंस भी लिखते हैं कि जैसे माना मैंने सोचा कि
केवल इस ग्रुप का ही मुझे इंटरव्यू करना है या केवल इस ऑब्जर्वेशन को ही मुझे लेना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि बाकियों को आपने डिस्कार्ड किया है, बाकियों को आपने नकार दिया है, जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल इस बात पे रिजल्ट है कि आपने केवल ये डेटा सेट लिए थे। तो आपको अपना लिमिटेशन भी देना पड़ेगा, कमियां नहीं लेकिन लिमिटेशन, मतलब आपको क्या लिमिट्स थी आपकी, क्या आपने कैसे आपने खुद को बांधा एक उसमें एरिया में कि नहीं मुझे इसी ऑब्जर्वेशन के लिए जाना है। तो इसका मतलब जो आपका रिजल्ट है वो उस ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग। द एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन, it should be in the form of table charts which are fully narrated. In fact, happens to the main body of the report, usually extending over several pages. So it's of course it's good to present the things in tables. जैसा हम स्कूल में भी किया करते थे कि अगर जैसे काफी रिजल्ट है तो rather to write 8 or 9 pages, it's good to put everything in a table. क्योंकि अगर पढ़ने वाला भी है उसके लिए भी आसान है कि एक पेज में अगर टेबल देख के उसे काफी चीजों का वहीं से अंदाजा हो जाए। और चार्ट के फॉर्म में जैसे बार डायग्राम या ऐसे चार्ट हम शुरू में बनाते थे, जैसे पहले ये एक मेन चीज है, इसका 2 ब्रांच है ऐसे, फिर यहाँ से इसका सब ब्रांच है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू प्रेजेंट लाइक दैट। वो सब हमने पहले किया होता है अपने बचपन में, but the thing is we have to implement it in our research, because research is also a part of our study or a part of our degree. So जो हम पहले से सीख के आए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करना इज ऑल्सो नेसेसरी। लाइक जैसे हम वो चार्ट पहले से भी बनाते थे या वो सब डायग्राम्स हम पहले से भी बनाते थे, तो इट्स गुड टू प्रेजेंट योर रिजल्ट्स इन योर रिसर्च रिपोर्ट और पेपर लाइक दैट। देन यू गो विद द कंक्लूजन्स। तो जो कंक्लूजन है, इट शुड बी अ डिटेल समरी ऑफ द फाइंडिंग्स, जो आपको रिजल्ट मिले हैं और कहां से आप और कैसे आपको वो रिजल्ट मिले हैं। दिस इज द कंक्लूजन। मतलब अगर कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें किसी को अपना पेपर देना हो और वो केवल कंक्लूजन पढ़े तो उसको सब समझ आ जाए, क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है। कई बार बहुत बड़ा पेपर होता है और हमें जानना है कि इस पेपर में क्या है, तो हमें लगता है अच्छा कंक्लूजन पे चले जाओ, वहां सब पता चल जाएगा। तो अगर कंक्लूजन ही अच्छा नहीं है तो मतलब it's really impossible for anyone to go again for your paper and to read all the results. तो the conclusion ऐसा होना चाहिए कि क्या क्या आपको समरी मिली, कैसे आपको ये रिजल्ट्स मिले और क्या आप समझते हैं कि अपने रिजल्ट्स को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। And of course the most important thing is bibliography, references देना। We should always do that even for the presentations or even for anything. कोई भी चीज आप अगर कहीं से ले रहे हैं तो वो वहीं पे मेंशन होना चाहिए। एंड दैट इज माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज राइटिंग माय थीसिस। इट्स गुड टू ऑलवेज पुट एट द सेम टाइम द रेफरेंस। जैसे माना मैं कहीं से कुछ पढ़ा मैंने, ऑफ कोर्स हम उसको अपनी भाषा में लिखते हैं, लेकिन माना मैंने वहां से वो चीज पढ़ी है और मैं उसको अपनी भाषा में लिख रही हूं, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी कि ये इस पेज से इतने पेज नंबर से मैंने लिया है। क्योंकि कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा अभी हम लिख लेते हैं, बाद में हम ऐड कर देंगे, लेकिन फिर वो बाद में इट नेवर कम्स, वो बाद में कभी नहीं आता। और इट्स डिफिकल्ट व्हेन यू हैव अ 5 पेज डॉक्यूमेंट, 5 पेज का पेपर है माना, और अगर आप सोचें कि ओ मुझे तो ये सब बिब्लियोग्राफी डालनी है या रेफरेंस डालने हैं, देन इट्स रियली डिफिकल्ट। सो आई विल रियली रिकमेंड इफ समवन इज राइटिंग एनी रिपोर्ट और एनी पेपर और थीसिस, देन इट्स अ गुड हैबिट to make it in your habit that to write your bibliography or to reference at the very next to that. अगर कोई भी आर्टिकल या कोई भी लेख लिख रहा है तो इट्स गुड कि हमेशा उसके बगल में उसका बिब्लियोग्राफी, हमें उसका रेफरेंस उस समय हम लिख लें, बाद में उसको जिस भी फॉर्मेट में हमें लिखना है हम उस फॉर्मेट में डाल दें। इट्स द वे आई यूजुअली डू। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू लाइक दैट। ऑफ कोर्स वी लर्न इट फ्रॉम द पीपल with whom we are starting our research or we are doing our research, but it's a good habit कि शुरू से ही उसको मेंशन करना कि ये मैंने कहां से लिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो पहली आदत जो हमें अपने में लानी है, that is not to copy paste. That is a really bad habit. When you do it at the very first time, then it's in your habit. So you should not do that. So
कभी भी कहीं हमने देखा तो, क्योंकि अब हम कंप्यूटर का ज्यादा यूज करते हैं, तो इट्स वेरी इजी कि तुम ले लो और हमें लगता है अच्छा बीच में कोई शब्द बदल देंगे तो अब ये मेरा अपना सेंटेंस हो गया, बट इट डजंट गो दैट वे एंड इट्स रियली बैड हैबिट। तो इट कैन बी साउंड अ बिट ओल्ड फैशन, कि मतलब ऐसे लग सकता है कि बहुत पुराने जमाने का है, बट मैं जब मतलब जब ओके पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे तो आई यूजुअली राइट ऑन पेपर्स। I have this habit to write on paper with a pen. So this is the way I always write my thesis as well. To make in on जब बहुत concentrate होके to write everything on paper, because it's not so usual to copy everything from screen to paper. When you are writing on paper, you are writing by yourself. जब आप पेपर में लिखते हैं तो आप खुद से लिख रहे होते हैं. And then I used to type it in my free time. क्योंकि when you are typing what you have written, it's not a big task. So usually when I used to be free, then I was doing it just like the typing. But the good thing, I always encourage people to write it on paper. I know it's old fashioned. कई लोगों को लगता है कि नहीं ये पुराने जमाने का है, but I think it's a good habit. So और उसमें bibliography में कई बार होता है कि तब आप नोट कर लेते हैं, then it's easy way to implement it when you are writing it on computer. And then there is something about the technical things. If you are from mathematical और ये लोग तो वो technical details उसमें डालना it's also important. And then it's index कि क्या आपने कहाँ पे रखा है. तो usually हम लोग index को पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं. तो जैसा हमारा है अभी तक तरीका, तो हम लोग उसको पहले रखते हैं, जिसे हम कहते हैं विषय रेखा, कुछ तो कहते हैं, I'm so sorry, रूपरेखा जैसे कुछ तो. So the popular, okay, I will go to my next slide in 2 seconds. If anyone has a question, I really appreciate. अगर किसी को कुछ पूछना है. गुड इवनिंग मैडम. हाय गुड इवनिंग. एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हम किसी पेपर में देखते हैं कि रिजल्ट भी दिया होता है और कंक्लूजन भी दिया होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट एंड कंक्लूजन? That's a nice thing. Results means जो रिजल्ट आपको मिला, जैसे मैं अभी बता रही थी कि जो भी मुझे रिजल्ट मिला वो मेरा रिजल्ट है, लेकिन कंक्लूजन मैंने उससे क्या निष्कर्ष निकाला. तो रिजल्ट मतलब आपके परिणाम, और उनसे आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं फिर कि अच्छा मुझे ये मिला और मेरा ये डेटाबेस था, तो मुझे लगता है कि ये ऐसे है. और रिजल्ट में जैसे रिजल्ट इज मीन, जैसे अगर मैं हूं, माना मैं ये कहूं कि ये अब मैं अपने फील्ड की ओर से कहती हूँ, जैसे मैं अपना जेट्स पे स्टडी कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि इसका स्पीड माना 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये ऊपर जा रहा था. दैट इज माई रिजल्ट. एंड व्हेन आई से कि क्योंकि ये 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा था और इसके पास इतनी इनफ स्पीड थी कि ये सूरज को छोड़ के बाहर जा सकता, और इसके बाद इसने ये सब इफेक्ट दिखाए, तो दैट इज माई कंक्लूजन. उसको हाँ ये एक जैसे लिमिटेशन की बात करिए, लिमिटेशंस में क्या आएगा इसमें, थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे. अच्छा, लिमिटेशंस अगर हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आई एम वेरी बैड एट इन अदर सब्जेक्ट्स, तो मैं अगर फिर से मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेके बताती हूँ. तो जैसे मैं माना जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो माना ये सन है, ये सूरज है, तो मुझे डिफाइन करना था कि मुझे कहाँ से अपना डेटा लेना है. तो इट कैन बी फ्रॉम एवरीवेयर, कि मैं कहीं से भी ले सकती हूँ, बट व्हेन आई डिफाइन कि मुझे वो ही डेटा सेट लेने हैं जो इसके बीच में हो. तो अगर कोई इवेंट यहाँ हो रहा है जिसे हम सोलर लिम्ब कहते हैं, सन के किनारे में, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक देम. तो इट्स माई लिमिटेशन. तो एवरी टाइम व्हेन आई विल से कि द स्पीड वाज दैट, कि इसका स्पीड इतना था या इसका ये इतना था, तो आई विल मेंशन कि मैंने केवल वो ऑब्जर्वेशन किए जो सन के बीचों बीच हो रहे थे, और मैंने उनको नकार दिया जो किनारे किनारे हो रहे थे. तो सोशल साइंसेस में भी इट कैन गो दैट वे कि आप जब डिफाइन करते हैं कि माना आपको कोई क्वेश्चन आयर करना है, और आपने खुद से ये डिफाइन करा कि मुझे बूढ़े लोगों की स्टडी करनी है, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया कि मैं जो 60 साल से ऊपर का है और 60 से 70 साल तक का है, मुझे केवल उसी से उत्तर प्रत्युत्तर करने हैं.
तो जब आपको आपका रिजल्ट मिलेगा देन यू हैव टू डिफाइन कि ये रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन दोज पीपल हु आर इन द एज ऑफ 60 and 70 एंड नॉट ऑफ 59 और 50 और 40, क्योंकि वो आपकी स्टडी को इफेक्ट करता है. क्योंकि अभी अगर मैं किसी से माना कोई हिंदी में रिसर्च कर रहा है, कुमाऊनी में रिसर्च कर रहा है, तो और अगर वो जाता है 50 से 60 वर्ष की उम्र के लोगों के बीच में, एंड व्हेन दे आस्क देम कि आप कुमाऊनी बोलते हैं, द आंसर विल बी डिफरेंट एंड आई नो द मेजोरिटी विल बी यस. जब आप जाते हैं नई जनरेशन की ओर, द आंसर कुड बी डिफरेंट. जब आप, जैसा हमारे में होता है कि आप पूछते हो उनको कि तुम पहाड़ी बुलाचा, तो द आंसर कुड बी मैं मुझे समझ आती है, मैं बोल नहीं सकता. इट कुड बी लाइक दैट. तो बट यू कैन नॉट जनरलाइज. जब आप अपना रिजल्ट दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड के तो 20% लोग ही कुमाऊनी बोलते हैं. देन यू हैव टू डिफाइन 20% या 25% या वो जितना भी है, वो इतने बोलते हैं जब वो उस उम्र में आते हैं. तो दैट्स द लिमिटेशन. And that should be clearly justified in your report. I hope I make it clear. यस. एक क्वेश्चन और था. हाइपोथेसिस कितनी होनी चाहिए? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कितनी लेंगे हम? Okay, it depends. It depends on the confidence you have on your first hypothesis. But I think हमेशा जैसे मैं कि तुम you should go with the first one, and when you fail then you should come back. You should try again, then you should come back. तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं आपके दिमाग में इतना आइडिया होना चाहिए ये सब, क्योंकि then it makes you less effective. क्योंकि जब ऐसा एटलीस्ट मेरे साथ होता है, when I have so many options, तो मैं कम उसमें मेहनत करती हूँ. तो कई बार ये होता है कि when you are really into your hypothesis, so you have to really decide first your hypothesis, then you really have to work on it. And जब आपको लगता है कि अच्छा ये it is not going to work anyway, then after discussing with some people you can go back and to have some other. Thank you. Good evening, ma'am. Actually, one question Hi. from this. I want to know, ma'am, the difference between references and bibliography. It's the same. The name is different. The name is different. Like when I wrote in my thesis, it was references. Bibliography is the bunch of references like you gave. तो दोनों का मतलब लगभग हो सकता है कि technically there could be a difference. I'm not very sure, but for me almost they are same. वो उस सोर्स को बताना चाहिए जहां से आपने कोई चीज लिया है. Hi. Is it clear or? Yes. Okay. Then I should go to my slide, right? Okay. Is it visible? My slide? I'm so conscious जब Google Meet से share screen करती हूँ तो I'm so sorry. Visible. It is visible. Okay. So the next thing, it's about the computer and its role in research. I think we already have talked about it. Ki computer, it's really not possible, or it should be really very difficult when we say that you have to do research without a computer, at least till now. So mostly people use it. It can be, ये हो सकता है कि कोई ज़्यादा कोई कम use करता हो, but at least to write a thesis you need it. Or to do some analysis, you need it. So and for science people, it's the most important thing, or it's the only thing I should say, from where you make the research. So there are different operating systems जिसमें आप काम करते हैं. It can be Windows, it can be Linux, or it can be the Mac system. तो फिजिक्स में ज्यादातर लिनक्स और मैक या आप लोग या हम लोग इस तरीके का यूज करते हैं, बट इट्स रियली ऑन देयर ओन चॉइस. ये व्यक्ति विशेष की अपनी चॉइस है, वो क्या यूज करना चाहे. दूसरा ये होता है कि देयर आर रियली यूजफुल सॉफ्टवेयर्स. जैसे आई एम सॉरी टू बी बायस्ड, मैं इसमें थोड़ा सा बायस्ड हूँ क्योंकि मैंने केवल वही लिखे जो फिजिक्स में और साइंस में हम लोग यूज करते हैं.
क्योंकि ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था कि सोशल साइंसेस का मैं इसमें क्या लिख सकती हूँ, बट आई एम रियली ओपन इफ एनीवन would like to tell. But the softwares we use, it's like usually the Fortran, MATLAB, or Python, or this one which I have used in my whole thesis, this IDL, Interactive Data Language, or Mathematica. So, or for text you can use LaTeX, or people can also write in Windows. So LaTeX तो बस एक लिखने का एक तरीका है, जैसे आप विंडो में डॉक में लिखते हैं तो वैसे ही लेटेक्स भी लिखने का एक जरिया है, लिखने का एक तरीका है, माध्यम है. ओके, नेक्स्ट इज पेपर राइटिंग. सो जब आप पेपर राइटिंग लिखते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा अपने समय से पीछे चल रही, तो आई विल ट्राई टू डू इट फास्ट. तो जब हम पेपर राइटिंग करते हैं तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो इट कम्स इन आवर माइंड, ये हमारे दिमाग में तब आता है व्हेन वी आर डन विद आवर रिजल्ट्स. इट्स द लास्ट थिंग आफ्टर आवर रिजल्ट्स ऑफ कोर्स. तो पहला होना चाहिए कि इज द पेपर वर्थ राइटिंग. दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योरसेल्फ कि सच में मेरे पास इतना रिजल्ट आ गया है कि मुझे पेपर लिखना है. उसके बाद उसमें देखना है कि हमें लिटरेचर क्या है, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन में आपको पुरानी चीजें भी लिखनी होंगी विथ रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी ऑफ कोर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, सो व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज द न्यू थिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम इट. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी से मैं कह रही हूं कि इट इज अ लॉट ऑफ वर्क टू राइट अ पेपर. सो द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आस्क टू योरसेल्फ दैट इट इज इट वर्थ टू राइट, तो वहां पे आपको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि इट रियली टेक्स इट्स अ टाइम एंड यू शुड बी ऑनेस्ट फॉर द पेपर कि जब हमें लगे कि हाँ हमारे पास इनफ मटेरियल है, देन यू गो फॉर दैट. अ सिंगल क्वेश्चन क्लियरली स्टेटेड विद एडिक्वेट एविडेंस फॉर द आंसर. जैसा अभी मैम ने मुझसे पूछा था कि रिजल्ट और कंक्लूजन में क्या फर्क है. दैट वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड इट्स हियर कि आपके पास एक वाक्य का आंसर होना चाहिए अपने रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए पेपर में. एटलीस्ट कोई हमसे पूछे कि ये तुम्हारा पेपर है तो तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या है, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 or 2 सेंटेंस जिन्हें तुम बोलो और अच्छा उसको लगे कि ओ दैट्स अ न्यू थिंग. और दूसरा हमें ये होता है कि ट्राई स्टेटिंग द क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इन 1 सिंपल सेंटेंस. हमेशा ये होना चाहिए कि कई बार हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा फैंसी शब्द डाल के पेपर, जब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, कि टू पुट मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, टू मोर फैंसी वर्ड्स, इट विल मेक माय पेपर गुड. बट इफ समवन विल आस्क मी, आई नेवर गो फॉर दैट. मुझे ये लगता है कि अपनी बात को मैं जितनी आसानी से किसी को समझा पाऊं, दैट्स द बेस्ट वे. क्योंकि हमें साइंस में अंग्रेजी में ही पेपर लिखना होता है, तो आई स्टिल ट्राई टू राइट इट as simple as in English that everyone can understand. मुझे लगता है ये हमें बोलने में और किसी को समझाने में ये हमेशा से होना चाहिए. जैसे यहाँ पे अधिकतर हमारे टीचर लोग हैं जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स वो ऐसा ही करते भी होंगे, ऐसा मुझे लगता भी है कि हमें वहां पे भी ट्राई करना चाहिए, और वो करते भी होंगे. आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि कितना आसानी से हम उन्हें समझा सकें. क्योंकि मुझे याद है जब मैं मेरी 12वीं के बाद पहली बार नैनीताल में आई थी, आई स्टिल रिमेम्बर when I was writing something, I was not able to translate. जब हम 12वीं में पढ़ते तो हम पढ़ते हैं कि कोई पेंडुलम दोलन कर रहा है. I was not able to write oscillation for दोलन. And then I am blessed to have such good teachers कि जिनसे तुम पूछ पाओ कि ये सब क्या होता है. तो ये it's not only for paper writing, it should be in our daily habit कि हम कितनी आसानी से और कितनी सहजता से किसी को समझा पाएं. क्योंकि it's the truth, at least for me, कि मैं किसी भी चीज को पहले दिमाग में हिंदी में सोचती हूँ, क्योंकि दैट्स द वे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, जैसे हम सब बड़े हुए हैं. दैट्स द वे कि हम पहले उसको हिंदी में सोचते, देन वी ट्रांसलेट इट, देन वी स्पीक इफ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश समटाइम, और इफ यू हैव टू राइट इन इंग्लिश. तो दैट शुड बी द थिंग. क्योंकि अब हमारे पास यही चॉइस है कि हमें पेपर इंग्लिश में ही लिखना है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो काफी सरल और सहज हो अपना रिजल्ट बताने में. एंड ऑफ कोर्स पुटिंग टू मच इन वन पेपर मेक्स इट डिफ्यूज. सब कुछ एक ही पेपर में डालने में इट मेक्स इट, आई शुड से खिचड़ी बना देता है, नथिंग एल्स. सो यू शुड बी वेरी प्रिसाइज कि हाँ इस पेपर में इतना ही जाना है. अगर आपको लग रहा है कि इट्स वर्थ, देन इट शुड गो टू द अदर पेपर. देन सम अदर थिंग्स आर, आई विल गो क्विकली ऑन दैट, कि सबसे सही फॉर्मेट क्या है लिखने का अभी.
कि मैं अपना ओरिजिनल आर्टिकल लिखूं या मुझे रिव्यू के लिए जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अधिकतर लोग पीएचडी वाले हैं और इन देयर अर्ली करियर स्टेज हैं, so these all things are, I'm just speaking from my experience, it's not a general statement, I should make it clear, but it's like मुझे लगता है कि रिव्यू वो उस इंसान को रिव्यू के लिए जाना चाहिए who really knows so many things about the same topic. तो I don't think I'm able to write a review till now or in 3 or 4 more years, क्योंकि पहले हमें उस ओरिजिनल उस फील्ड की काफी जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी होने के साथ उसमें काफी काम हमने किया भी होना चाहिए। और द अदर क्वेश्चन इट व्हाट इज द राइट ऑडियंस, कौन ऑडियंस मतलब क्या जनरल है सही जिसे मैंने सबमिट करना है। मतलब मैं सोलर फिजिक्स में काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं स्टेलर में अपना पेपर जमा करने की सोचूं, या हम पॉलिटिकल साइंस में काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम हिस्ट्री वाले में, ऑफ कोर्स वी नेवर डू दैट। तो दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट थिंग टू फाइंड योर जनरल, which topic of your paper is good, और ये ऑडियंस के साथ मैच होता है कि नहीं। तो दैट्स द वे यू आस्क योर सुपरवाइजर और सीनियर्स और बाहर के लोगों से। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव ओपिनियन फ्रॉम डिफरेंट पीपल, क्योंकि जब हम किसी लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो उन्हीं से ओपिनियन लेने के अलावा आई वुड प्रिफर टू हैव ओपिनियन फ्रॉम द अदर पीपल एज वेल, कि अच्छा वो उन्हें क्या लगता है। क्योंकि व्हेन यू विल गेट योर पेपर, तो it will not be from your lab, your reviewer or your editor will not be from your lab, so you really need people other than your office. And the other important thing is, it's important, but okay, for me it's not very important, the impact factor. Then you go for impact factor, I will explain it how we calculate it. Then the consequence of wrong decision, that कि अगर आप पेपर लिखने के लिए रेडी ही नहीं थे और आपने लिखा जमा किया, तो ये आपका टाइम लॉस है। और okay, I should not write the word failure to publish, because I don't believe much there is something failure, because कि कई बार होता है कि बहुत अच्छा भी पेपर है तो भी कई बार रिजेक्ट हो जाता है और कई बार वो मना हो जाता है, but it's okay, it's not a failure. Okay, so about the impact factor, तो impact factor क्या होता है? जब हम रिसर्च में हैं तो we should know about this. ये एक मापक है कोई जर्नल का कि ये कैसा जर्नल है ऐसे, and it can vary from subject to subject. जैसे फिजिक्स में having a paper in impact factor in 2 is really good, having a paper in impact factor 5 is extremely good, or having a paper in 8 or so, it's incredible, or it's very good, you can say. But it depends, like कहीं कहीं पे होता है कि impact factor 17 है, 18 है या 30 है, ऐसे भी impact factor होते हैं. So for me, at least for me, if you are in your early research age, you should know, of course, what is impact factor, but I would say rather you should go for a good research rather to always fight for the good impact factor research. So impact factor ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि पिछले 2 साल में उस जर्नल में कितने आर्टिकल छपे और वो कितने बार साइट हुए, तो हम एक दूसरे से उसे भागा देके या डिवाइड करके उसे विभाजित करके हम इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं. तो अब है कि साइंटिफिक आर्टिकल कैसे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग को होता है कि हमें इट्स ऑलमोस्ट द सेम. आई एम सो सॉरी कि स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम कैसे हम अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर हम एविडेंस देते हैं, उसके प्रूफ देते हैं, फिर हम conclusion देते हैं. ये almost it's the same thing which I was talking earlier. Okay, in the paper writing, the main important thing is the title page. तो I would prefer that you do it early, शुरू के स्टेज में, जिसमें डिफाइन होता है कि टाइटल, ऑथर्स और उनका ऑर्डर, या हम कहते हैं कि कौन कौन इसमें ऑथर होंगे, कौन कौन को ऑथर होंगे. तो एटलीस्ट वी डू इट एट द वेरी अर्ली एज, बिकॉज इट रियली हेल्प्स टू जस्टिफाई द वर्क. उसमें ये होता है कि आप उसके बाद जब पेपर लिख रहे हैं तो यू कैन डू इट इन दैट वे कि आप टाइटल डिफाइन करें. ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू कि कैसे पेपर लिखना है. उसके बाद ऑथर और को ऑथर डिफाइन कर दें कि हाँ, मुझे अगर सबसे ज्यादा काम करना है, मैंने डेटा एनालिसिस किया, आपको लग रहा है कि ये सब मैंने किया, तो यू कैन बी द फर्स्ट ऑथर, बट इट्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देन यू कैन डिसाइड, और इन द ग्रुप यू कैन डिसाइड कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा. तो इट्स ऑफ कोर्स ऑलवेज वेरी गुड टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी
in the group. So it's a good thing. और ये it always also helps to avoid hurt the feelings, क्योंकि शुरू में अगर आप define कर देते हैं तो बाद में बहुत ज्यादा फेरबदल करना नहीं पड़ता. It's a good thing to do it very first. I feel it. फिर आप ये करते हैं कि पहला ड्राफ्ट बनाते हैं पेपर का. उसके बाद ऑफ कोर्स उसमें कई चेंज होते हैं, तो आई रियली रिकमेंड कि जो पहला ड्राफ्ट है उसको आप डेट वाइज सेव करें. जैसे मैं करती हूँ, जैसे आज है 21 मई है आज, माना मैंने आज पेपर ड्राफ्ट किया, तो आई विल सेव इट this draft 21 May. Then next day if someone will make any change, then I will save this 22 May, draft 22 May. So it helps in that way. That's what it says, file name with dates. And then of course what I explained earlier, tables, figures, these always help. Then it's very important to put deadlines for you and for your co-authors. Sometimes, at least for me, sometimes it's really important to put deadlines for me. कई बार हमें लगता है कि वो never ending, कभी खत्म ना होने वाला पेपर हो जाता है. या हम कई बार ऐसा करते हैं, कोई चीज हमें लिखनी होती है तो हमें लगता है अच्छा हम लिख ही रहे हैं. कई बार it's good कि नहीं, मुझे 22 मई तक ये कर देना है, और you say to your co-authors कि it's your work and you should do it at 22 May. I really wanted to do it at that day. Then it's a good thing to work in that way. तो ये है पेपर का ड्राफ्ट जो अभी हमने बताया भी कि देयर वुड बी इंट्रोडक्शन, जिसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि पिछला क्या काम था, कैसे आप क्या क्या गैप थे जिनको आप फिल करना चाह रहे हैं. उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन किसी एक क्वेश्चन से खत्म होना चाहिए या किसी एक चीज से खत्म होना चाहिए कि अच्छा अभी तक तो इस फील्ड में ऐसा ऐसा हो गया था, लेकिन अभी ये चीजें हैं जो नहीं पता, क्योंकि तब आप बेस बना रहे हैं अपने लिए कि अच्छा अब ये नहीं पता तो अब इसलिए मैं ये सब करने जा रहा हूं. क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि ये हो गया है, तो देन आई लास्ट, क्योंकि अगर सब कुछ हो गया है तो तुम तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू. So that's the smart thing, to finish your introduction with a question. Then of course you write methods कि कैसे आपने किया. It's good thing to make subheadings. जैसे माना आप अगर कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जर्वेशन है, तो आई प्रेफर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की सब हेडिंग्स हो उसके अंदर, इसलिए लिखना थोड़ा आसान हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन दैट, मैं हमेशा इसको जोर देके कहती हूँ कि राइट क्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड. अगर कोई नॉन टेक्निकल इंसान भी पढ़ रहा हो तो तब भी वो एटलीस्ट कुछ उसमें से गेन कर पाए. इट शुड बी एवरीवेयर, व्हेन वी आर स्पीकिंग, व्हेन वी आर राइटिंग, इट शुड बी एवरीवेयर. दूसरा पास्ट टेंस में ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप वो कर चुके हैं, तो आप ये लिखेंगे कि मैंने ये डेटा लिया, क्योंकि आप ये नहीं लिख सकते कि मैं ये डेटा ले रहा हूं या ले रही हूं या मैं ये डेटा लूंगी, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग अ पेपर इट इज सपोज दैट यू हैव फिनिश्ड ऑल योर वर्क. देन यू ऑर्गेनाइज योर रिजल्ट्स इन टेबल, और रिजल्ट्स हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स आप कहते हैं कि मुझे ये मिला, या ये आई ऑब्जर्व दिस, या आई फाइंड दिस, इस तरीके से. एंड देन कहीं पे अगर आपको लिखना है रिजल्ट्स में कि ये मेथड मैंने यूज की, तो ऑफ कोर्स आप पास्ट टेंस यूज करेंगे, बट अपना रिजल्ट प्रेजेंट करने के लिए टेबल में आप प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं. और रिजल्ट्स इज जस्ट द फैक्ट्स, इट्स नॉट द कंक्लूजन, so it should be just the fact. Okay, table should not stand on their own, उनका कोई caption या they should be justified by themselves. And when you write discussion or conclusion, तब उसका पहला जो पार्ट है it would be the answer of those questions जो आपने introduction में लिखे हैं, और बाकी आपके एविडेंस होंगे कि ये सब प्रूफ है, और डिस्कशन के लास्ट का पैरा आप कंक्लूजन कर सकते हैं. तो कुछ लोग डिस्कशन को डिस्कशन इन कंक्लूजन भी लिखते हैं. आई ऑल्सो फाइंड इट जस्टिफाई, इट्स ओके, यू कैन राइट इट डिस्कशन या फिर डिस्कशन इन कंक्लूजन. ओके, दूसरा आता है रिव्यूअर्स कमेंट्स. सो एटलीस्ट फ्रॉम मी द रिव्यूअर इज ऑलवेज राइट. जो आपका रेफरी है वो हमेशा सही है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए. if you want a good review process, हो सकता है कि वो नहीं भी हो सही, but for me at least I always think like that कि the reviewer is always right. तो जो उसने एटलीस्ट कहा है आपसे करने के लिए वो आप करो. तो अगर आप पहले ये सोच रहे हैं कि the reviewer is always right, तो आप एकदम क्विक रिप्लाई नहीं करेंगे. and it's good to read your referee report again and again and again and again. क्योंकि कई बार होता है जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है ओ गॉड सब खराब हो गया, जो सब किया था इट्स नोवेयर, ये सब यूजलेस है ये सब.
लेकिन जब आप दोबारा पढ़ते हैं आपको लगता है ओके इतना भी बुरा नहीं है, फिर आप पढ़ते हैं फिर आपको लगता है ओ ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट हमें पचाने होते हैं वो रिव्यूज की नहीं उसने कहा है तो यू हैव टू डू दैट. एटलीस्ट फॉर मी वी डू दैट इन वे कि इफ रिव्यूअर हैज आस्क्ड यू टू रिपीट योर एनालिसिस, आई हैव डन इन पास्ट एंड I don't mind if I have to do it again, like in future. ये बहुत कठिन होता है समय कि जब आपसे रिव्यूअर कह रहा है कि नहीं आपको ये दूसरी मेथड से करना है, बट एज आई से रिव्यूअर इज लाइक ऑलवेज राइट though. You should respect the reports. If the paper is rejected, then also you have choices. It might be possible that you are doing something wrong, but there are chances that you can change the journal, of course. And it's you should not feel shame or you should not feel fail, because I remember it's really tough. You just when you see that rejection you start crying or तुम्हें बहुत बुरा लगता है, but it should not go that way. जर्नल चेंज करना या वी हैव ऑलवेज ऑप्शंस, रेफरी चेंज करना, वी ऑलवेज हैव ऑप्शंस. और अगर नहीं लगता है कि रेफरी चेंज होना नहीं लगता है, then you should go for the another journal. Okay, I should spend more time on that at least. So there are useful platforms for the research one should know, like the Google Scholar. It's for the PhD students or the early career researchers who are making plans to do research. So there are a few things which at least I find useful. That Google Scholar, where you can make a profile and वो आपको update रखता है उन सब के बारे में. The other one is, oops, I'm sorry. ResearchGate, I think most of the people know about it. यहाँ पे भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं. It helps you to connect people. इन सब लोगों से जुड़ के और आपके फील्ड में लोग क्या काम कर रहे हैं ये सब देख के, और कई बार ये अच्छा होता है कि आप देखो rather to scroll anything else. It's good to go for ResearchGate or Google Scholar. Next is ADS ABS. It's for physics people if someone wants to know, or science people. यहाँ पे you can search the papers by the author's name, author का नाम डाल के, year डाल के you can search the paper. Otherwise in archive यहाँ पे आपको recent paper मिल जाते हैं नए. और the other one is Overleaf. It is mainly for the writing part. You can write your paper online. It's a good thing, good practice. If anyone wants this slide screenshot or anything, I can give them back. I will put my email in the very last. They can mail me. अगर किसी को भी ये कोई जानकारी दोबारा चाहिए या उसको अभी उससे नोट नहीं हुआ तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं जो मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में दिखा है. एंड आई वुड बी सो हैप्पी. मुझे खुशी होगी वो शेयर करने में. As my title says, जैसा मेरा title कह रहा था कि I will also speak about the opportunities, so I should speak more about them. That there are more scholarships for. Okay, this is mainly for the women research fellows, but of course there are more for men as well. So there are a few जहाँ पे आप PhD कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो there are a good number of opportunities. The thing is you have to know about them, like UGC ka postdoctoral fellowship to women candidate. It is after PhD. There are the other scheme, women schemes, A, B and C from Department of Science and Technology, New Delhi. So you can explore about them afterwards. And there are some more opportunities for general people. I really don't want to bias just to speak only about women. मैं केवल women वाला बोलने के लिए bias नहीं होना चाहती, इसलिए मैंने ये सब भी रखे. As the first, everyone knows, I guess, UGC CSIR JRF SRF fellowship for the PhD. The other one is DST Inspire fellowship. The other one is Swami Vivekanand Singh Child Scholarship. ये research के लिए है. It's a single child scholarship and it is for social science people. So it's a good thing to check if you are a single child. The other one is Maulana Azad National Fellowship. This is for people who are doing MPhil and PhD and they come from the minority communities. The other one is for this DBT JRF fellowship. The other one is ICSSR fellowship. This is I found it really important for the social science people, this ICSSR, because when I was doing study for this my presentation to add it, then okay.
जब मैं अपना ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैं थोड़ा सा देख रही थी तो मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट लगी सोशल साइंस पीपल के लिए। ICSSR फेलोशिप, इट इज फॉर सोशल साइंस पीपल, जो किसी UGC रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी में है, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी है हमारी। तो उसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल वर्क है या पॉलिटिकल साइंस है, ये सब। तो उसमें यह है कि अगर आप PhD में एडमिशन लिए हुए हैं तब आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन जस्ट नोट डाउन द नेम एंड यू कैन सर्च मोर, आप नाम देख सकते हो और उसके बाद कुछ और सर्च अगर करना है तो वो देख सकते हैं। एंड दिस NCERT डॉक्टर फेलोशिप फॉर PhD, इट इज ऑल्सो रियली गुड थिंग टू चेक फॉर दैट, बट इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक इन डिटेल। और एक लिंक है जो ये dst.government.in फॉर फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज रिसर्चर, यहाँ पे भी जितनी अपॉर्चुनिटीज है रिसर्चर्स के लिए वो सब यहाँ पे होता है। तो इट्स अ गुड थिंग टू एक्सप्लोर, ये और ढूंढने के लिए अच्छा है। There are more opportunities for women. It's the thing I would like to mention. The women candidate who are in PhD or who have done their PhD, it is also valid who are acting as a permanent faculty degree college in any degree college or in any campus, then you can go for that. It's a really useful, very nice Indo-US Science Technology Forum where you have to submit a proposal and you go to US for I think for 1 month to 6 months. You can decide and you can go there to conduct some research or to start some research like that. At least I found it really useful. People can do that. I think it opens once in a year और आप इसके लिए apply करते हैं. It's a very good fellowship. I think the fellowship amount is pretty good. So the women researchers who are जो PhD कर रहे हैं या वो faculty हैं वो उसको देख सकते हैं. It says WISTEMM. It says like that. And the other one is Raman Charpak Fellowship from Indo-French program. I feel proud having that during my research. So it is a bilateral. I'm so sorry for having this mistake. I should have corrected. I'm really sorry. Yeah, so it's like okay, from Indo-French program, it's the Raman Charpak Fellowship. It's a thing when you go to France to conduct a part of your PhD thesis. I think the call is still open for this year. I guess 31st May is the last date. That's why I added it. तो लास्ट टाइम पे मैंने ऐड किया, अगर तब मुझे लगा कि इसका डेडलाइन बचा है, तभी मैं ये टाइपिंग मिस्टेक मुझसे हो गया. तो that's a good thing. It's for every science and engineering person, I guess. But one can check about that. The other one is overseas visiting doctoral fellowship from DST. It's also really very important for the PhD students who are doing their PhDs and really want to go outside to conduct a part of their research. So anyone who really wants to know about some fellowship or ये सब, I would be happy to share it. So these are the references for my talk. Now I will go. So I think the questions now can come into last. I'm running out of my time. I will go to some of my research now. So it is my journey from Kumaon University in Nainital. Like the first picture it says we're in Uttarakhand, India. It's Joshimath in Chamoli. I just clicked the picture and liked it, so I put it there. Then I opted my master's from Kumaon University and I started my PhD with Professor Ramesh Chandra. With the boards, it says it's Nainital, from where I did my PhD. Basically, I'm from Bageshwar. I think everybody knows because ज़्यादातर लोग उत्तराखंड से ही हैं यहाँ पे. तो this is the slide. ये slide है जब मैं कहीं यहाँ पे talk देती हूँ. I start putting it क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग हमारी जगह को भी जाने, कि उत्तराखंड को भी जाने और कुमाऊं को भी जाने, इसलिए I always prefer to put it. And the other photo where I started looking at the sun with Professor Wahabuddin and with my supervisor Professor Ramesh Chandra. The other picture it comes from the solar observation. ये एक बार स्कूल के बच्चों के लिए हमने एक प्रोग्राम किया था, उन्हें सूर्य ग्रहण के लिए दिखाने के लिए ले गए थे. I hope मेरा एक आर्टिकल था सूर्य ग्रहण पे उस समय, कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों ने एटलीस्ट पढ़ा होगा. देन इन द बॉटम रो नीचे वाली लाइन में हमारा सोलर फिजिक्स ग्रुप और हमारे जो कोलैबोरेटर हैं बुल्गारिया से, दे केम हियर. इट इज द पिक्चर फ्रॉम देयर. एंड देन कई बार मुझे लगता है कि केवल रिसर्च करना ही इज नॉट इम्पोर्टेंट, टू शेयर इट विद द पीपल. आम जनता के साथ उसको बांटना इज रियली इंपॉर्टेंट. तो ये GGIC के कुछ बच्चों के साथ हम सूर्य ग्रहण देखने गए थे, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग देम.
It was in my PhD. Then ये एक conference का photo है महाराष्ट्र में. Then we used to go in conferences, as everybody knows. Then the other photo is also from the conference. Then in 2016, it was my first foreign trip to Bulgaria with my professor there. Then the other one is when I'm giving a seminar in the NASA heliophysics summer program in Colorado in USA. The other one is in 2019 when I was in China for my research work. And the other one is Observatory de Paris. I feel so proud having a part of my research there. Thanks to my supervisor that he motivated me to go there. ये है जहाँ पे मैं 2020 में जो कोविड वाला साल था उसके बाद मैं उससे पहले मैं वहाँ पे थी. And the lady, she is Dr. Brigitte Schmieder. She was my supervisor there. I did my work with her there. And in the bottom image, it's the image from my PhD defense. I defend my thesis in November 2021 from Kumar University. It's the photo from our university. And soon after finishing my PhD, I got a position here in Oslo in Rosslyn Center of Solar Physics, Institute of Theoretical Astrophysics in Oslo. And then I came here in February. And so now I continue working on that. So it is just to show that I really want to feel connected. इसलिए I was appreciating the questions कि मैं भी उसी जगह से उसी यूनिवर्सिटी से हूँ. So I always mention this whenever I speak here. यहाँ पे कभी भी मैं बोलती हूँ तो I will always pick this picture that where Uttarakhand is in our map and where is my university, our Kumar University. I put it in the red circle. Okay, so now I think I have 10 minutes. तो अब मैं थोड़ा सा मैंने अपना PhD में काम किया है, I should speak about that. So I worked on the sun. So जैसे आपको दिख रहा है कि ये sun का एक part है जो 193 एंगस्ट्रॉम में ऑब्जर्व किया गया है. तो you can see so beautiful eruptions from the sun. So sun is actually a plasma ball and वहां से उसके अलग अलग कलर में जो आप ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, अलग अलग कलर मतलब अलग अलग तरंग दैर्घ्य मतलब अलग अलग ऊर्जा. तो जैसे ये है या अलग अलग तापमान कह सकते हैं. जैसे ये 304 एंगस्ट्रॉम है, जो आपने पहले देखा था हल्का भूरे रंग का वो 193 एंगस्ट्रॉम था. तो ये जब आप सन को एक जैसे देखते हैं तो ये ऐसे दिखता है. तो इट्स द थिंग व्हाट वी वर ट्राइंग टू एनालाइज. सो दैट्स द थिंग. Okay, so I should do a small introduction about what I have done. So solar activity को हम define करते हैं कि जब sun में बड़े या छोटे दोनों तरह के eruption होते हैं या हम कह सकते हैं उनको विशालकाय ज्वालामुखी जैसे निकल के आता है. तो वो अगर छोटा स्केल में होता है हम कहते हैं स्मॉल स्केल है, बड़े स्केल में होता है बड़े फॉर्म में होता है हम कहते हैं लार्ज स्केल है. तो मेरा जो PhD थीसिस था वो स्मॉल स्केल पे था. तो स्मॉल स्केल का एक टाइप है जेट, जैसा आप बाईं ओर की इमेज में देख रहे होंगे फोटो में, ये ऐसे बीम जैसे छोटे छोटे ऐसे निकल के जा रहे हैं तो इन्हें हम जेट कहते हैं. तो इस पे मेरा PhD मेनली था. अगर हम कहें कि सोलर जेट क्या होते हैं तो ये हर जगह पाए जाने वाले स्मॉल स्केल मास इजेक्शन होते हैं सन के सरफेस से, जो 10⁴ से लेके 10⁶ केल्विन इस तापमान तक के रेंज में पाए जाते हैं. तो क्योंकि हमारी ऑडियंस यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे सन के बीच में एक छोटा सा एक्टिविटी है. फिर उसी इमेज को मैंने जूम करके हमने देखा और फिर हम देखते हैं जब मैंने लिखा CME, इसका मतलब है कोरोनल मास इजेक्शन. जब सन के सरफेस से निकल के वो बाहर आ जाता है मास और फिर हमारा इंटरप्लेनेटरी मीडियम से धरती की ओर आता है, तब उसे हम CME कहते हैं. लेकिन मेरा PhD मेनली जब सन पे वो एक्टिविटी हो रहा है उसको जानना था. तो दैट इज अ समरी ऑफ माय PhD. और यू कैन से कि मैंने सन को अलग अलग स्पेस सैटेलाइट से ऑब्जर्व करके हमने रिसर्च अलग अलग किया और उनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया. तो ये एक समरी है उन रिजल्ट्स की, जिसको है now I feel like I put more technical words. I'm sorry for that, but it's just to show you, or I feel like it's good to show these beautiful images of sun. And now I'm here in Oslo. तो अभी तक जो मेरा PhD था, सरल शब्दों में कहूँ तो मैंने जो अंतरिक्ष में लैब्स हैं उनसे जो डेटा मिलता है उनसे किया. और अब मैं यहाँ पे ओस्लो में मैंने जो ग्रुप किया है, हमारा यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है, हमारा एक बड़ा टेलीस्कोप है स्पेन में वहां और वो धरती पे है. तो अभी तक मैंने जो काम किया था वो स्पेस में वाला किया. अब जो
सन पे ही स्टडी हम करेंगे, वो उस डेटा से करेंगे जो हम धरती से खुद ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होता है कि जब आप स्पेस से ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं समझा पाई सही से, तो जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशन को रोक देती है। तो हम धरती पे हमें यूवी रेडिएशन नहीं मिल सकता, तो यूवी रेडिएशन के लिए हम स्पेस में गए और जो दृश्य प्रकाश है उसको हम धरती से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमेशा एक सबसे अच्छा तरीका रहता है कि जब आप दृश्य प्रकाश और जो अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी या ये अवरक्त किरणें या जो एक्स रे, ये जो सब हम पढ़ते थे, इन सबको आप मर्ज कर पाए। तो अब हम ये करेंगे कि अब मैं कंबाइन करके हम ये स्टडी करेंगे कि जब हम स्पेस का जो डेटा है प्लस जो ग्राउंड बेस्ड जो डेटा हम उसे कहते हैं, जो हमारे टेलीस्कोप्स का डेटा है, उनसे उसको कंबाइन करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है इस स्वीडिश 1 मीटर सोलर टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन के लिए। और ये इस ऑब्जर्वेशन के ये इस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन है। ये एक बहुत सुंदर सनस्पॉट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं तो ये दोनों इमेज जो नारंगी और नीला है, ये दोनों इमेज एक ही टेलीस्कोप से एक ही टाइप के स्ट्रक्चर की है, बस अलग अलग टेम्परेचर है, इसलिए ये अलग अलग दिख रही हैं। Thank you so much for your kind patience, and this is my email ID ritikajoshi.ntl@gmail.com. I would be so happy to get your query. मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को क्वेश्चन जान के, अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन जानने हो या कुछ भी जानना हो। I think I finished it on time. Thank you.